خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اور اس بیبی کے لیے جس نے میرے لیے دعا کی ہے، خداوند اس کو برکت دے۔ بیبی، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو ہمیشہ ترقی دے اور ہمیشہ اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرتا رہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ایسے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لپٹے رہنے کا فضل بخشے۔ آئیے ہم کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ پرسوں سے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو آج ہم روزے کے تعلق سے ہی کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ روزہ کلام مقدس کے مطابق کس طرح رکھا جائے اور مسیحت میں کیسا روزہ ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے لیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 1 سے 7 آیات تک پڑھیں گے۔ یسایہ 58 ورس 1 to 7۔ جی ایسٹر ذرا پڑھ دیجئے گا۔ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں۔ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں آتا۔ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے ہیں جبکہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ جی، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں آتا۔ جبکہ تو خیال میں ہی نہیں آتا۔ ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں لیکن تو نظر ہی نہیں کرتا، تو خیال میں ہی نہیں آتا۔ ہم کس لیے روزے رکھتے ہیں؟ جی ایسٹر آگے پڑھیے۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ اب خدا یہ جواب دے رہا ہے کہ تم روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اس لیے میں تمہیں خیال میں نہیں لاتا۔ تم نزدیکی چاہتے ہو، اس لیے میں نزدیک نہیں آتا، کیونکہ تم جو روزہ رکھتے ہو وہ میری خوشی اور میری مرضی سے نہیں رکھتے بلکہ اپنی خوشی کو خیال میں لاتے ہو۔ جی، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ اور لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ جن باتوں سے خدا منع کرتا ہے تم تو سارے وہی کام کرتے ہو۔ میرے لوگوں پر ظلم کرتے ہو، ان سے سخت محنت مشقت کرواتے ہو۔ جی، دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو۔ او مائی لارڈ، تم تو اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑے اور رگڑے کرو، دھوکہ دہی کرو، فراڈ کرو، لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرو، ان کو شرارت کے مکے مارو۔ ذرا آگے پڑھیں، یہی آئے گا۔ جی اور شرارت کے مکے مارو۔ جی، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو۔ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو جو خداوند رب الافواج ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کے خدا کو پسند ہے۔ تم وہ روزہ نہیں رکھتے ہو، اس لیے میں تمہیں خیال میں نہیں لاتا، اس لیے میں تمہاری نزدیکی نہیں چاہتا، اس لیے میں تم پر نظر نہیں کرتا، کیونکہ تم تو میرے لوگوں کو۔ جی آگے پڑھیں۔ کہ تمہاری آواز سال میں بالوں پر سنی جائے۔
हाँ, अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज एलिया की तरह आसमान पर पहुंचे। बाइबल मुकद्दस बताती है एलिया ने दुआ की और 3.5 साल बारिश ना हुई, आसमान बंद हो गया। एक रास्तबाज, एक ईमानदार की दुआ से अगर आसमान बंद हो सकता है और खुल भी सकता है, तो फिर हमारा रोजे रखने से आसमान क्यों नहीं खुलता? क्यों हमारी आवाज सुनी नहीं जाती? क्योंकि हम अपनी खुशी और अपनी तरक्की के लिए रोजा रखते हैं, अपनी मर्जी के लिए रोजा रखते हैं, ना कि खुदा की मर्जी के लिए। जी, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। रोजा तो ये है जो मैंने रोजा ठहराया है कि तू साल में एक दिन अपनी जान को दुख देना। तो तुम तो दुख नहीं देते, तुम तो दूसरों को दुख देते हो, तुम तो मेरे लोगों से सख्त मुशक्कत करवाते हो। जी, और अपने सर को झाव की तरह झुकाए। अपने सर को जाओ की तरह झुकाए। जाओ एक ऐसा पौधा है जो दरिया के किनारे पे लगा होता है, जो पानी के किनारे पे लगा होता है। जब सैलाब आता है, जब पानी चढ़ जाता है, तो वो पौधा झुक जाता है, वो पानी के अंदर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही सैलाब खत्म होता है, तो वो फिर से अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तुम तो झुकना जानते नहीं, तुम्हारी खुदी तुम्हारे अंदर से जाती नहीं। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पहले अपनी खुदी का इनकार करे। किस तरह के रोजे तुम रखते हो? खुदी तो तुम्हारे अंदर से जाती नहीं। आगे बढ़े एस्टर। और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अपने नीचे टाट और राख बिछाएं। जी, क्या तू उसको उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जी। जो खुदावन को मकबूल है? क्या वो ऐसा दिन होगा जो खुदामंद को मकबूल है? जी, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये जी। नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े? क्या जो मैं रोजा चाहता हूं, क्या तुम वो रोजे रखते हो कि तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो? तुम तो मेरे लोगों से सख्त मुशक्कत करवाते हो, तुम तो उन्हें भूखा रखते हो। जी, और जुए के बंधन खोलें। और जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आजाद करें। मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। ये वो रोजा है जो खुदा चाहता है। जी, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या ये वो रोजा नहीं जो मैं चाहता हूं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? हम तो 70 डिशें अपने आगे सजा के बैठे होते हैं। क्या ये वो रोजा नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? और मस्कीनों को जो ओवारा हैं जी, अपने घर में लाए। जी। और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। उसे पहनाए। जब मैं तेरे घर आया तो मैं प्यासा था, तूने पानी ना पिलाया। मैं भूखा था, तूने खाना ना खिलाया। मैं नंगा था, तूने कपड़ा ना पहनाया। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस में रोजे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाज लोग हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये बात भी नहीं, ये बात भी नहीं लिखी हुई, कोई मौसम नहीं है, कोई महीने का जिक्र नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसी बातें नहीं हैं जो बाइबल मुकद्दस में तहरीर हैं, जो मुकद्दसों ने अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए अपनी तरक्की के लिए, अपनी सरफराजी के लिए, अपनी इकबालमंदी के लिए उनको तजवीज किया ताकि हम अपनी रूहानी जिंदगी में सरफराजी हासिल कर सकें, हम बरकत पा सकें, हम जुए और बंधन तोड़ सकें। बनी इसराइल भी रोजा रखते थे, लेकिन तौरेत में लिखा है कि हर एक इंसान साल में एक दिन अपनी जान को दुख दे। रोजे का जो लुग़वी मायना है वो है अपनी जान को दुख देना। प्यास है तो पानी नहीं पी सकते,
भूखे हैं तो भूख खाना नहीं खा सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक ही बात है कि मैंने अपने खुदा के लिए रोजा रखा है, अपनी जरूरतों के लिए रोजा रखा है। लेकिन रोजा रखने का कोई मकसद भी हमारे पास होना चाहिए। आजकल मेरे देखने में बात आई है कि कई लोग देखा देखी रोजा रखते हैं, कोई मकसद रोजा उसमें नहीं होता। लेकिन बाइबल मुकद्दस का रोजा है वो मकसद का रोजा है। हमारे पास उसके लिए कुछ मकसद होना चाहिए। भूख और प्यास का हम सामना करते हैं किसी मकसद के लिए। अगर हमारा कोई मकसद नहीं तो भूखा रहना कोई फायदा नहीं है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यहां हम देखते हैं बनी इस्राइल की तस्वीर। जब वो रोजा रखते थे तो उन्होंने अपने तौर पर बहुत कुछ किया, लेकिन खुदा ने उनको आगाह किया कि क्या जो रोजा तुम रखते हो वो मेरी मर्जी के मुताबिक है। अभी हमने पढ़ा है, या रोजा तुम अपनी खुशी के लिए रखते हो, अपनी मर्जी से रखते हो। बाज दफा हम वो काम करते हैं जो अपनी जात और अपनी खुशी के लिए और अपने आप को बड़ा दीनदार साबित करने के लिए, फकी और फरीसियों की तरह। वो भी जब रोजा रखते थे तो लोगों को बताते थे मैं रोजे में हूं। आज भी गैर कौमों को आप देखें तो वो इसी हालत में हमें नजर आते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, लेकिन खुदावन रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि जो रोजा तुम रखते हो वो ये रोजा नहीं जो मुझे पसंद है। अगर यसाया 58 बाब की 5 आयत है, जरा दोबारा पढ़ दीजिएगा। यसाया 58 वर्स 5। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? रोजा तो बनी इस्राइल भी रखते थे। इस बात से वो कासर थे कि जो रोजा मैं रख रहा हूं या अपनी जान को दुख दे रहा हूं, क्या वो रोजा खुदा को भी पसंद है या नहीं है। वो इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन रोजा रखते थे वो। कभी कभी हम काम तो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जो काम हम करते हैं, जिसके लिए करते हैं, क्या वो इस काम को पसंद भी खुदा करता है या नहीं। हम अक्सर ऐसा करते जाते हैं। आखिरकार हमें यह सुनना पड़ता है कि जो काम तू करता है वो मुझे पसंद नहीं। और अगर मुकाशफा हम देखें तो वहां लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है। जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम कहता है तू नीम गर्म है, जो मुझे पसंद नहीं है। खुदा बनी इस्राइल से नाराज है कि जो रोजा तुम रखते हो वो मुझे पसंद नहीं। ये रोजा मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए तुम रखते हो। आजकल हमारे लोग, हमारी बेटियां, हमारे बेटे रोजा खोलने का बहुत एहतमाम करते हैं। बहुत सारी डिशेस तैयार करते हैं रोजा खोलने के लिए। ये कहां से हमें मिला है? खुदा का कलाम कहता है कि आज ये वो रोजा नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। हम भूखों को तो खिलाते नहीं, लेकिन खुद इतनी डिशें खाते हैं कि जैसे ईद होती है। तो रोजे का मतलब तो जान को दुख देना है। तो ये कैसा दुख है जिसमें हम इतनी अच्छी अच्छी डिशें खाते हैं? क्या ये वो रोजा है?
जो रोजा खुदा को पसंद है वो ये है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और अपने कपड़े नंगे को पहनाए। ये है वो रोजा जो खुदावंद रब्बुल अफ़वाज लश्करों का खुदा पसंद करता है। ये बात हम में कहां से आई? दूसरी कौमों से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कौम में, हर मजहब में रोजा रखा जाता है, लेकिन इसके नाम मुख्तलिफ हैं, औकातकार मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो मसीहत या बाइबल मुकद्दस में रोजे का मतलब है वो है अपनी जान को दुख देना। जान को दुख देना। जान को दुख ऐसे नहीं दिया जाता जब तक कोई मकसद सामने ना हो। मकसद अपनी जान को दुख देना अच्छा नहीं है, और मैं कहूंगा ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर आपके पास मकसद नहीं है और आप भूखे और प्यासे रह रहे हैं, अपनी जान को दुख नहीं दे रहे और अपने आप को भूखा और कमजोर कर रहे हैं, तो ये कोई ठीक बात नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमें मकसद भी बताता है कि कोई मकसद भी होना चाहिए जिसके लिए हम रोजा रखते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा ने अपने बंदा यसाया के वसीला से अपने लोगों पर यह जाहिर किया कि ये लोग खुदा की नजदीकी चाहते हैं, लेकिन खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। जो बातें खुदा कहता है वो नहीं मानते। रोजा एक ऐसा अंसर है जिससे हम खुदा की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। रोजे में रहते हुए हम बहुत सारे कामों से परहेज करते हैं। रोजा बहुत सारी बातों से हमें परहेज करने को कहता है। जिस्म की ख्वाहिशों से परहेज करते हैं और हर किस्म की नकम्मी बात से परहेज करते हैं। रोजे से हम अपनी कमजोरियों पर गालिब आ सकते हैं। जिन ख्वाहिशों पर हम खुद गालिब नहीं आ सकते, हम उन पर भी रोजे की वजह से गालिब आ सकते हैं। लेकिन ये रोजा जो आम लोग रखते हैं, उनकी तरह रोजा जो रखते हैं वो खुदा को पसंद नहीं। अगर हम योएल की किताब, योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़े, तो यहां खुदा खुद अपने लोगों को उभारता है कि रोजा रखो और रोजे के लिए महफिल फराहम करो। जी, ऐसा पढ़ दीजिए योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। जी, सयोन में नरसिंगा फूंको, सयून में नरसिंगा फूंको, ऐलान करो, लोगों को बताओ। क्या बताओ? और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। सयून में नरसिंगा फूंको, लोगों को बताओ, लोगों को उबारो और एक दिन मुकद्दस महफिल के लिए क्या करो? एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, जमायत को मुकद्दस करो बुजुर्गों को इकट्ठा करो, और बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से दूल्हा अपनी कोठरी में ना रहे और दुल्हन अपने खिलवत खाने से निकल आए, और वो दुल्हन भी अपनी खिलवत खाने से निकल आए। सबको इकट्ठा करो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ खुदा खुद अपने लोगों को रोजा के लिए उभारता है कि रोजा रखो, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, रोजा रखो, तुम्हारी जरूरत है रोजा। रोजे के जरिए तुम मेरी नजदीकी हासिल कर सकते हो, क्योंकि खुदा अपने बंदा को कह रहा है कि रोजा रखो। अगर आगे हम पढ़े तो हमें मकसद मिल जाएगा। जरा आगे भी पढ़िए एस्टर इसको। वो खादम कहें, ए खुदा
اپنے لوگوں پر رحم کر. جی پڑھیں ذرا. काहिन जनी खुदावन के खादम जी। ड्यूरी और कुर्बानगाह के दरमियान किरियाजारी करे गिरे आजारी करें खादम, खुदा के खादम गिरे आजारी करें. जी. और कहें ए खुदावन और कहें ए खुदावन अपने लोगों पर रहम कर अपने लोगों पर रहम कर. ये है मकसद रोजे का जो खादमों के लिए है. यह है रोजे का मकसद. ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर. ये रहम की अपील के लिए रोजा रखा जाता है. खुदा से मदद हासिल करने के लिए रोजा रखा जाता है. अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए रोजा रखा जाता है. मुश्किलों और मुसीबतों से निकलने के लिए रोजा रखा जाता है कि ए खुदावंद मेरी ये मुसीबत, मेरी ये मुश्किल जो है ये टल जाए. आप नैनवा की बात जानते हैं. नैनवा में क्या हुआ? जब यूना वहां गया तो यूना ने नैनवा में मनादी की कि 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा. और वहां लिखा है जैसे ही बादशाह ने सुना तो उसने अपना शाही लिबास उतारा और ताज ओढ़ लिया और खाक पर बैठ गया. और वहां ऐलान कर दिया गया कि जानवर तक भी अन्न का दाना ना खाएंगे. तो क्या हुआ? खुदा का गजब टल गया. रोजा मुसीबत और मुश्किल, अजाब और खुदा के गजब को टाल देता है, खुदा के गजब को ठंडा कर देता है. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा हमें मुआफ कर देता है. अगर हमारी कोई गलती या खता से कोई मुश्किल आई है तो खुदा उसे भी खत्म करने की कुदरत रखता है और खुदा का गजब ठंडा हो जाता है. रोजा खुदा के गुस्सा को, खुदा के गजब को ठंडा कर देता है. अगर रोजे का मकसद हमारे पास नहीं तो आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, क्या कहेंगे? देखें, नैनवा ने एक मकसद के लिए रोजा रखा. जब उनको पता चल गया कि 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा तो उन्होंने रोजा रखा. खुदा की बंदी मलका एस्तर ने एक मकसद के लिए रोजा रखा, अपनी कौम के लिए रोजा रखा और उसका मकसद भी पूरा हो गया. खुदा ने उसकी आवाज को, जो लोगों ने रोजा रखा, जो मलका एस्तर ने रोजा रखा, और खुदा ने सुना और खुदा ने उस पर काम किया. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, रोजा मकसद के लिए रखा जाता है. अगर मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं, मेरी फैमिली में कोई काम नहीं हुआ मेरे रोजा रखने से, तो मैं ऐसे ही अपनी जान को दुख दे रहा हूं. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, रोजा हमारी मदद करता है. खुदा के गजब को, हमारी खताओं, हमारी गलतियों को, जिनकी सजा मौत है, खुदा के गजब को टाल देता है. जरा योएल की किताब 2 बाब की 12 और 13 आयत जरा पढ़िएगा. 12 और 13 आयत. जी, योएल 2 बाब, जी, 2nd चैप्टर वर्स 12 to 13. जी. लेकिन खुदावन फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और किरियाजारी और मातम करते हुए अब भी पूरे दिल से रोजा रख कर खुदावंद फरमाता है, अब भी अगर तुम्हारी फैमिली में कोई काम नहीं हो रहा, आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो खुदावंद फरमाता है अब भी वक्त है कि रोजा रख कर क्या करें? किरियाजारी और मातम करते हुए किरियाजारी और मातम करें, आंसू बहाएं खुदा के हजूर. खुदा सुनेगा. खुदावंद का कलाम बरहक है. लिखा है आसमान और जमीन टल जाए पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी. ये कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा का कलाम है.
کے بارے میں کلام مقدس فرماتا ہے گھاس سوکھ جائے گی, پھول کملا جائے گا, لیکن اس کا کلام ابدالآباد قائم رہے گا, یہ ٹل نہیں سکتا. خداوند رب الفاظ فرماتا ہے اب بھی وقت ہے. اگر کام نہیں ہو رہا, اگر آپ کی مصیبت نہیں جا رہی, اگر آپ کے جوئے نہیں ٹوٹ رہے, اگر آپ کے گھرانے میں تبدیلی نہیں آ رہی, اگر آپ کے بچے نافرمانی سے نہیں باز آ رہے, اب بھی روزہ رکھ کر گرے آزاری کرو. آگے کیا کرو؟ میری طرف رجوع لاؤ. میری طرف رجوع لاؤ. اب بھی روزہ رکھ کر گرے آزاری کرو اور میری طرف رجوع لاؤ. اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک. اپنے کپڑوں کو نہیں, ماتم نہ کرو, اپنے دلوں کو چاک کرو, کپڑوں کو نہ پھاڑو, دکھاوا نہ کرو فقی اور فریسیوں کی طرح کہ ہم بڑے روزے دار ہیں, ہم پارسا ہیں, دنیا میں ہم جیسا کوئی دیندار نہیں. 2 شخص ہیکل میں دعا کے لیے گئے تو ایک شخص جو فریسی تھا وہ دعا کے لیے ہیکل کے اندر گیا اور کہتا ہے خداوند اچھا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, میں تو دے یکی بھی دیتا ہوں, اچھا ہے کہ میں دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہوں. وہ شخص خداوند کو جتا رہا ہے. اگر وہ دے یکی دے رہا ہے تو اس کو یہ پتا نہیں کہ کس کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہے, اس کے سورس کیا ہے, اور آسان جتا رہا ہے میں تو روزے بھی رکھتا ہوں. اور دوسرا اپنی جان پر ماتم کرتا ہے, اے خداوند میں تو تیرے آسمان کی طرف نظر کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں. اور خدا کا کلام یہاں کہتا ہے اپنے دلوں کو چاک کرو. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, وہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا کا کلام بتاتا ہے اپنے دلوں کو چاک کرو. جی, خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. اس کی طرف متوجہ ہو. دیکھو پولس کہتا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو, اس کی طرف متوجہ ہو. وہ کیا کہتا ہے وہ سنو. جی, کیونکہ وہ رحیم اور مہربان, وہ تو رحیم اور مہربان ہے, کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اس کو دیکھو, اس کی طرف رجوع لاؤ. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو پھر خداوند ہمیں موقع دے رہا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا سے کہیں خدا میری بدنی ترقی ہونی چاہیے, مجھے تیری طرف سے تیرا مکاشفہ ملنا چاہیے, مجھے تیرے کلام کے الہی بھید ملنے چاہیے, مجھے تیری قوت, تیری انائنٹنگ, تیرا مسا چاہیے. جس طرح علیشا نے خدا سے فریاد کی کہ مجھے ایلیا سے دگنا دے, ہمیں بھی مانگنا چاہیے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. روزے میں مانگیں, مقصد کے لیے مانگیں, کیونکہ روزہ بے مقصد نہیں, روزے کا مقصد ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے بائبل مقدس میں کہ روزہ تو خدا کے سامنے گرے آزاری کرنے کے لیے, خدا کے سامنے منت اور سماجت کرنے کے لیے ہے. اپنی مشکلوں, اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. روزہ جو ہے کلام مقدس میں اس کی بڑی اہمیت ہے. بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو روزے کی ہمیں 2 اقسام نظر آتی ہیں, ایک شخصی روزہ ہے اور ایک اجتماعی روزہ ہے. اور ہر ایک آدمی روزہ اپنی درستگی کے لیے, اپنی زندگی کی ترقی کے لیے, اپنی برکت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہے. روزہ جو شخصی روزہ ہے وہ آدمی
अपनी जिंदगी की दुरुस्तगी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बरकत और अपनी जरूरियात के लिए रखता है। और इज्तिमाई जो रोजा रखा जाता है वो सिर्फ किसी एक काम के लिए रखा जाता है, या एक जरूरत के लिए रखा जाता है, या एक ख्याल या एक मकसद के लिए रखा जाता है। और वो बहुत सारे लोग मिलकर एक बात के लिए रोजा रखते हैं, और ये रोजा सब एक काम के लिए रखते हैं, खुदा के हजूर झुकते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आप शख्सी रोजा रखते हैं तो अपना खास मकसद खुदा के सामने रखें, चाहे वो आपकी शख्सी जिंदगी की ख्वाहिशात हैं जिन पर आप गालिब आना चाहते हैं, या वो आपकी औलाद के लिए है जिनको आप फर्माबरदारी के लिए खुदा के हजूर लाते हैं, या आपके खानदानी मसाइल हैं जो मियां बीवी के हल नहीं हो रहे, उनके लिए हमें खुदा के हजूर झुकना है और रोजा रखना है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में रोजे के बारे में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। रोजे की सूरत आजिजी, इनकसारी, खाकसारी, परेशानियों से निकलना, उसकी सूरत से बदल जाना, ताकि खुदा कादर मुतलक आदमी को इस हालत में देखकर उस पर रहम कर सके। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, रोजा खुदा को राजी करने का एक जरिया है। जब हम भूखे और प्यासे उसकी हजूरी में अपनी मकसद को, अपनी फरियाद को, अपनी ख्वाहिश को लेकर आते हैं, तो फिर खुदा हमें भूखा और प्यासा देखकर हमारी फरियाद को, हमारी रिक्वेस्ट को मान लेता है। जिस तरह हम दुनियावी माँ बाप होते हुए हमारे बच्चे अक्सर जिद करते हैं किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए कि हमें ये लेके दें, तो वो हम नहीं लेके देते तो वो खाना नहीं खाते। वो कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। और हम माँ बाप होते हुए एक वक्त तक देखते हैं और आखिरकार हम मान जाते हैं और उसकी वो जरूरत पूरी कर देते हैं। हमारा खुदा भी ऐसा ही है, वो रहीम है, वो रहम करता है। जब हम भूखे और प्यासे उसकी हजूरी में आते हैं और उससे फरियाद करते हैं अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी आजमाइशों के लिए जिनमें हम गिरे हुए हैं, तो खुदा हमारी दुआ को जरूर सुनता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें रोजे का मकसद पता होना चाहिए और रोजा बेमकसद नहीं होना चाहिए। और जो रोजा खुदा को पसंद है, हमें उसकी तरफ मतवज्जो होना चाहिए, उसकी तरफ रजू लाना चाहिए कि हमारा खुदा क्या पसंद करता है, और वो रोजा खुदा को कबूल होगा। क्योंकि उसने फरमाया, क्या ये वो रोजा नहीं कि तुम भूखों को रोटी खिलाओ और नंगों को कपड़ा पहनाओ और बंधन तोड़े जाए, जंजीरें तोड़ी जाए, कैदियों को रिहा किया जाए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये रोजा खुदा को पसंद है। अगर हम ऐसा रोजा रखते हैं तो खुदावंद का शुक्र है, और अगर ऐसा रोजा नहीं रखते तो आज खुदावंद का कलाम हम सबों को आगाह करता है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।